much ado, let's start with our polity class. So today we'll be taking up polity, or what we call as the Indian Constitution. So you guys have any idea about the Constitution, about the polity? Tell me a little bit. Am I audible to you guys? If yes, then kindly speak up. So, Yeah. sir, yes. So roughly, if I would say, like our constitution tells us about how the national territory of the country is formed. Also, it tells about how the people of the country should govern themselves, like in the form that they have the fundamental duties about how they should perform their duties towards the nation, and then they have fundamental rights which protect them from different criterias which could harm them. Then the constitution also tells us about the different geographical areas of the country, like how the states are divided. Also, it tells us about the parliamentary constitution, like the how the president is formed and what are the functions of president, the parliament, council of ministers, the states, etc. In a nutshell, I would say the constitution summarizes about all the criteria of the country. Okay, decent idea. Anyone else? Sir, constitution, as the word suggests, literally means it constitutes the country, and it gives a political identity, and it also gives us a character of deterrent of a nation. And it is a supreme law of a country, strictly linked with the aspiration of the masses, particularly. Okay. So, constitution is a set of fundamental rules that determine how a country or a state is run. Okay. Anyone else wants to add on to this? Others also speak up. May want to add a couple of points maybe. Chalo. Anyways, see, the thing is, from times immemorial, if we go back to the Stone Ages, if we go back to the times of the early man, the Cro-Magnon man, the Neanderthal man, there were no societies. Okay, there were no societies. They lived they lived in caves. They had no organization, and they were like living a nomadic life, just like animals. Gradually, when agriculture developed, so it led to settled life, because now you did not need to wander about in search of food. You could grow your own food and settle. And that led to building up of tribal societies. Later on, we had clans, which emerged into what you say, kingdoms, and then nation states in very recent history. All right. So as man started to move from a nomadic life to a settled life, he needed certain rules and regulations to get rid of, to avoid those, what you call, the tyrannical or anarchical tendencies. There is this concept of liberty, if you understand. What is liberty? Liberty gives the individual the right to do what he wishes to. There are no constraints. There are opportunities. There are restrictions on this power of the state. So for liberty, it restricts the power of the state. Okay? And state kind of also regulates the rights of the individual. On the other spectrum of it, we have license.
This license is different, a little different term, LICENC. So when liberty degenerates, extreme of liberty, it leads to license. And similarly, license, when curbed, it balances out. So basically, the idea is to arrive at a balance between the power of the state and the rights of the individual. ठीक है, तो ये आपका बेसिक आइडिया है. अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? व्हाट इज, इफ आई आस्क यू व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, सो आप ये नोट करते जाएं पॉइंट साथ में. अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट is by nature a limiting government. अब लिमिटिंग गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है which restricts the powers of the state. ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें स्टेट को अपनी पावर्स एक्सरसाइज करनी है, और ये एक लिमिटिंग गवर्नमेंट बनाता है. ये इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द tyranny of the executive, tyranny of the state. For example, dictatorial governments थी, जब kings used to rule. So there you had no constitution because there were no rules and regulations for the king. He could do whatever he wished to do. So that is the brief context. So what is the idea of a constitutional government? ठीक है, अभी आप थोड़े से पॉइंट्स लिखिए, मैं इसमें आपको पॉइंट्स लिखवाते जाऊंगा, आप नोट करते जाएं. इसमें नंबर 1 लिखिए, the idea of constituent assembly. The idea of constituent assembly of India was first given by M.N. Roy in 1934. So this was the first time any idea of the constitution was given in an Indian setup. M.N. Roy, he was a great communist. M.N. Roy, he was a great communist. So he kind of, gave, for the first time, he gave the idea of a constituent assembly. So that was the beginning of a constitutional setup in India. After that, in 1938, just remember that, in 1938, Pandit Nehru, he declared that the Constitution of Free India, must be framed without outside interference. ठीक है, ये this is how our constitution scheme is evolving. ठीक है, उसके बाद ग्रेजुअली 1940s में आपका ऑगस्ट ऑफर आया, फिर ट्रिप्स मिशन आया, फिर कैबिनेट मिशन प्लान आया. इवेंचुअली अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान it provided for the constituent assemblies of India and Pakistan. Constituent assemblies of India and Pakistan, which were free to frame their own constitution. ठीक है, they effectively acted as a parliament kind of till the actual parliament came into being. ठीक है, तो इसने क्या बताया कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज फ्रेम कर सकती हैं. फिर एक ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी उस टाइम पे, ड्राफ्टिंग कमेटी which was headed by, any idea who was the head of the drafting committee? You must know. Dr. Ambedkar. Yes, sir, if I'm not wrong. Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the drafting committee. Yeah. And
The Constituent Assembly of India held its first session on December 9, 1946. ठीक है? December 9, 1946 और December 9, 1946 से November 26, 1949 तक. The members of the drafting committee, they discussed and they analyzed the unique scheme of things in India as well as the constitutions of different countries. तो इन्होंने about 60 countries का constitution they discussed, they analyzed the constitution of 60 countries and eventually on 26 November 1949 the constitution was ready. ठीक है? But हम रिपब्लिक डे तो 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं. So if you have read a little bit of history, you will understand that on 26 January 1929, on the banks of River Ravi, a resolution was passed by the Indian National Congress to declare Purna Swaraj, total independence. Purna Swaraj or total independence. ठीक है? To give importance to that day, 26th January was chosen as the day of the enactment of the constitution. ठीक है? अभी लिख लीजिए कुछ कमेटीज और उनके चेयरमैन कौन थे. Note that. Number 1, Union Powers Committee. It was headed by पंडित नेहरू. पंडित नेहरू एक और कमेटी को भी हेड करते थे. कौन सी? स्टेट्स कमेटी. अगेन पंडित नेहरू. Another committee, Union Constitution Committee. All three committees were headed by Pandit Jawaharlal Nehru. Next is Provincial Constitution Committee. And next, Advisory Committee on Fundamental Rights and Minorities. These two committees were headed by Sardar Patel. ठीक है? Drafting committee हमने पहले डिस्कस कर लिया, headed by Jawaharlal Nehru. And there was another committee, Rules of Procedure Committee. Who headed this? Rajendra Prasad. यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर. Any doubt? Yes, sir. कोई डाउट है किसी को? No, sir. ओके, वंडरफुल. तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन हमारा किस तरह से इवॉल्व हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या होती है, हमने ट्राइबल सोसाइटी से कैसे हम यहाँ तक पहुंचे, हमने ये सब डिस्कस किया है ना. अभी हम आगे देखेंगे एक और चीज जो आपको यहाँ पे बताना था कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
ठीक है? When it met as a legislative body, it was headed by, any idea, any guesses? G.V. Mavalankar. When it was headed by, when it met as a legislative body, it was headed by G.V. Mavalankar, who also went on to become the first Speaker of Free India. The first Speaker of Free India. And when it met as a administrative body, it was headed by Dr. Rajendra Prasad, who went on to become India's first president. These are some important facts that you must know. So if it is asked, what is the date of the commencement of the Constitution? What will be your answer? Date of commencement of the Constitution. What is your answer? Tell me. अभी हमने पढ़ा just. Tell me the answer. Yes, yes. 26 November 1949. No, 26 January 1950. That is the date of commencement. On 26 November 1949 is considered the day of enactment of the Constitution. Okay? Okay, sir. Wonderful. All right. Now, just write down a few salient features of our Constitution. What are the important features of our Constitution? What are the salient features, important features of our Constitution? First is, it is the lengthiest constitution, lengthiest written constitution of the world. ठीक है? India's constitution is written, Britain's constitution is unwritten. When we talk कि कोई constitution written है कि unwritten है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि उसके maximum जो provisions हैं, maximum provisions are written, while some are convention, some are unwritten. जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं, ब्रिटेन, हम कहते हैं ना उसका कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, इसका मतलब उसके most of the provisions are based on conventions, parliamentary conventions, and a few provisions may be written. Okay, lengthiest and written constitution. Next point. It is drawn from various sources. ठीक है, हमने पहले पढ़ा कि 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने स्टडी किया, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना. तो ये हम बाद में स्टडी करेंगे किस हमें कंपोनेंट से क्या मिला है. ठीक है, नेक्स्ट है कि ours is a blend of rigid and flexible constitution. Blend of rigidity and flexibility. Rigidity का मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है. देयर लॉट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस देयर. और जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज वेरी फ्लेक्सिबल, इजीली अमेंडेबल. बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज प्रोवाइडेड certain provisions can be easily amended, while the others, they can be amended through certain, like, special majority. That we will see what is a special majority. In certain cases, for example, you need the ratification of states also. So similarly, we have to understand here
कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल with a unitary bias, with a unitary bias, ठीक है। फेडरल तो है बट सेंटर स्ट्रॉन्ग है हमारा, स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब फेडरल फीचर्स कौन से होते हैं वो हम पढ़ेंगे बाद में, यूनिटरी फीचर्स कौन से होते हैं, वी आर स्ट्रॉन्ग सेंटर, वी हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव इंटीग्रेटेड जुडिशरी, वी हैव ऑल इंडिया सर्विसेज, we have like the rigidity, the flexibility of the constitution is a unitary feature while flexibility is a federal feature, ठीक है, rigidity is a flexible feature, okay। We follow the Westminster model, Westminster parliamentary democracy, Westminster parliamentary democracy, Westminster का मतलब क्या है, तो ब्रिटेन का वेस्टमिनिस्टर एबे है, वेस्टमिनिस्टर एबे ऑफ ब्रिटेन, सो लाइक दैट, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, इट इज अ सिंथेसिस ऑफ, अब देखो वी हैव अ सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, parliamentary sovereignty and judicial supremacy, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यूएस में क्या है, यूएस इज बेस्ड ऑन जुडिशियल सुप्रीमेसी, वहां पे जुडिशरी सुप्रीम है, और ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है, द पार्लियामेंट इज सोवरेन। बट हमारे केस में क्या है, इंडिया, हम कहते हैं ना प्रीएम्बल में, वी द पीपल having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist democratic republic, so we the people, so we are a popular, we have popular sovereignty, popular sovereignty का मतलब sovereignty draws from the people are supreme, हमारे देश में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं, हमारे देश में पीपल आर द सुप्रीम, ठीक है। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी कहाँ पे है, ब्रिटेन में, जुडिशियल सुप्रीमेसी कहाँ पे, यूएस में, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। फिर हमारा एक और क्या है, हमारी इंटीग्रेटेड है जुडिशरी, इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट, independent, we have an integrated and independent judiciary। तो इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि हमारा एक ही सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, मुंसिफ कोर्ट्स, पूरा ये हायरार्की चलता है। और इंडिपेंडेंट क्या है, executive and legislature cannot intervene in the working of the judiciary, so that makes it a kind of a guarantor or the custodian of fundamental rights of the citizens, fundamental rights of the citizens, ठीक है। तो हमारा जो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है ये हमारे सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ये एक ही सिस्टम है और ये इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस से हमने इसको प्रोटेक्ट किया है। दूसरा, आपको अगर याद होगा आर्टिकल 50 है जो हमारा, आर्टिकल 50 under directive principles of state policy, it provides for separation of executive, separation of executive and judiciary। पहले क्या होता था, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते थे बिफोर इंडिपेंडेंस, दे आल्सो हैड मैजिस्टीरियल पावर्स, दे हैड द पावर ऑफ जजमेंट। तो उन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद वो चीज अलग कर दी, अब वो पावर जुडिशरी के पास है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द सिस्टम ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स वो हम पढ़ेंगे। देन वी हैव द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, this is article 12 to 35, this is article 36 to 51, and finally we have fundamental duties, article 51 alpha, ठीक है। So these are a few provisions of the constitution, few defining features of our constitution। इसके बाद we have, हमारा constitution क्या है, हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्रोवाइड करता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है, ऑल सिटीजन्स
of a certain age are 18 years of age के जो citizens हैं सारे 18 and above, they have a right to vote. हमारी एक 61st Amendment Act आई थी 1988 में. 61st Amendment Act of 1988, it provided for reduction of voting age. ये नोट करते जाए पॉइंट साथ में. Reduction of voting age from 21 years to 18 years. तो तब तक वोटिंग एज थी 21 साल. तो ये जो 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 आई है, उसने इस एज को रिड्यूस करके 21 से 18 कर दी. ठीक है. फिर हमारा सेक्युलर स्टेट है. वी आर अ सेक्युलर स्टेट. ठीक है. सेक्युलर का मतलब, अब देखो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट कहां से ओरिजिन हुआ है. सेक्युलरिज्म के दो आइडियाज हैं. एक है नेगेटिव कॉन्सेप्ट. नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नॉट इन द सेंस, आई विल एक्सप्लेन. और दूसरा है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म. तो जो इन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट आया वेस्टर्न से, सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड चर्च. तो वेस्टर्न कंट्रीज में यू हैव चर्च, इट यूज्ड टू इंटरफेयर इन द स्टेट अफेयर्स. तो जब सेक्युलर आइडिया आया कि कोई भी स्टेट फंक्शन में चर्च का कोई रोल नहीं रहेगा, चर्च विल नॉट बी allowed to have a say, so that is kind of negative. Negative means separate the role of religion and state. ठीक है. पॉजिटिव में क्या है, आर वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म इज अ पॉजिटिव वर्जन. ऐसा नहीं कि ये पॉजिटिव है, बट पॉजिटिव इन द सेंस दैट स्टेट विल इक्वली एड ऑल रिलीजन्स. ठीक है. सब रिलीजन्स को एक इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है. दिस वुड मीन respect all religions equally, respect all religions equally. अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है. When you say respect all religions equally, this would mean disrespect as well. Disrespect all religions equally. अब ये disrespect को भी आपको थोड़ा डीप में समझना पड़ेगा. Disrespect का मतलब ये नहीं है if there are certain restrictions that are imposed on one religion, the same restrictions ought to be imposed on the other religion. So we are having like maintaining a calibrated stance, a very calibrated stance with respect to religious interference. और next हमारा है, we have a system of single citizenship. हमारा citizenship single citizenship है. ठीक है. Single citizenship का मतलब क्या हुआ, अब जैसे यूएस में स्टेट्स की सिटीजनशिप अलग है और फेडरल सिटीजनशिप अलग है, प्रोविंशियल एंड फेडरल. इंडिया में क्या है, we the people of India, we have a single citizenship. For example, someone belonging to Tamil Nadu, he will not be having citizenship of Tamil Nadu. Before Article 370 abrogation, the citizens of Jammu and Kashmir, they had dual citizenship. They had a state subject. Now that is abolished. Now all across the country, there is only one citizenship. Okay. Then an important role that is played in the constitutional scheme is by independence of constitutional bodies. अब इसमें कौन कौन सी बॉडीज आती हैं आपकी, इंडिपेंडेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. इसमें आपका फर्स्ट आ गया यूपीएससी. द इंडिपेंडेंस ऑफ यूपीएससी एज अ सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन यू हैव द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट आल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट. देन यू हैव द CAG, द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, and the office of president and vice president. So these are the important bodies that kind of ensure the constitutional scheme of things works well. Okay. And finally, हमारा जो system of government है, it is a 3-tier system of government. 3-tier government. हमारा 3-tier system of government है. 3-tier का मतलब क्या है, आपका सेंटर होएगा at the top. We have a central government. ठीक है. Below that we have state government, and at the bottom of the rung we have the local self governments. ठीक है. तो ये हमारा 3-tier
सिस्टम है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट, आई हैव ट्राइड टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या हैं, हाउ इट इवॉल्व, व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर इट्स फीचर्स। अभी यहाँ तक कोई डाउट है तो पहले पूछो, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो आस्क। Excuse me, sir. या प्लीज। Sir, my doubt is as basic structure cannot be amended, no? अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर पे आएंगे, वैसे पूछिए Okay, आप, पूछिए So, आस्क। the basic structure cannot be amended means इसका मतलब क्या है ये पूछ रहे हैं? yes, sir. हाँ हाँ, देखिए अभी चलो आपने पूछ लिया तो आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ओनली। देखिए फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस के बीच में एक डिबेट स्टार्ट हुई थी 1951 में, शंकरी प्रसाद केस। ग्रेजुअली दैट इवॉल्व, तो वो हम फंडामेंटल राइट्स में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको बस समझाने के लिए आई विल एक्सप्लेन कि 1973 में there came a judgment of the Honorable Supreme Court in केशव नंदा भारती केस, केशव नंदा भारती केस, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि द लेजिस्लेचर, legislature means the parliament or the state legislature, can amend the constitution including the fundamental rights, including, note करते जाइए, including the fundamental rights, ठीक है, without violating the basic structure, without violating the basic structure। तो इन्होंने इसमें क्या दिया, एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो कुछ फीचर्स को, some features were identified as integral and inviolable part of the constitution, और ये बोला गया कि कोई भी legislative enactment और executive decision cannot be contravenous to the basic structure. For example, fundamental rights, they constitute a part of the basic structure. Article 32, right to constitutional remedies, it constitutes a part of the basic structure. The integrated judiciary, the independence of the judiciary. Okay, so these are a part of a basic structure. Whatever has been put through various judicial pronouncements over a period of time as a part of the basic structure, that cannot be amended. We can amend the constitution, but without violating the basic structure. कि जो basic structure में provisions हैं, उनको violate नहीं करना है. I hope that is clear to you. Yes, sir. Wonderful. और किसी को कोई डाउट? पूछिए, पॉलिटी है, अभी शुरू कर रहे हैं तो डाउट्स आ रहे हैं तो बी फ्री टू आस्क, अदरवाइज डाउट्स एज वी मूव फर्दर तो डाउट्स क्रीपिंग होते जाएंगे, तो बेटर है कि आप डाउट्स अभी पूछते जाएं। नो डाउट्स? प्रियांशु, नूरदीप, मोनिका, रुचिका, अनाबिया, क्या डाउट है तो पूछ लीजिए। ऑल वेल? इन दैट केस वी मूव। प्लीज रिस्पॉन्ड थोड़ा जल्दी करें, अगर आपको डाउट नहीं भी है तो रिस्पॉन्ड कर दें ताकि वी डोंट स्टॉप फॉर द क्लास ना। नेक्स्ट वी हैव, देखिए आर्टिकल्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। तो वी हैव कितने आर्टिकल्स थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था? 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स, ठीक है, 8 शेड्यूल्स। अब इसमें क्या है, अभी हमारे अराउंड 450 आर्टिकल्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स। तो अभी आपके दिमाग में आएगा कि 450 का आर्टिकल्स तो हमने आर्टिकल नंबर 450 तो देखा ही नहीं। तो बेसिकली आर्टिकल का न्यूमेरिकल्स 395 ही रहा है। जो आर्टिकल्स हमने इंक्रीज किए हैं दैट हैव बीन एडेड एज appendages to these articles. For example, we have article 223 alpha, we have article 43 alpha, we have article 300 alpha, we have article 323 bravo. So these are the articles added as appendages. So absolute number remains the same, and but the overall, if you count the appendages as well, that becomes 450. ठीक है? I hope that is clear. Next आ रही है schedules। क्या हमारे जो
schedules है constitution में? What are the, how many schedules are there in the constitution? Are you noting this down? Yes, sir. या प्लीज नोट करें इसको, ये इंपॉर्टेंट है सारा, इसमें एक भी चीज छोड़े ना. थोड़ा रिस्पॉन्ड करें क्लास में. पॉलिटी में आई वुड लाइक यू टू बी मोर रिस्पॉन्सिव. इफ आस्क समथिंग नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव व्हाटएवर, एटलीस्ट रिस्पॉन्ड. ठीक है. तो हमारे स्केड्यूल्स हैं. सबसे पहला स्केड्यूल है हमारा फर्स्ट शेड्यूल. इट लिखिए इसको. इंडिया, इट्स स्टेट्स एंड टेरिटरीज. ठीक है. तो फर्स्ट शेड्यूल में इंडिया की यूनियन, उसकी स्टेट्स और टेरिटरीज और उनके नाम के बारे में मेंशन. तो दिस इज द फर्स्ट शेड्यूल. सेकंड शेड्यूल क्या है? अब देखिए, ओथ अगर किसी को दिलानी है, किसी से कुछ काम कराना है, तो पहले सैलरी दोगे. तो सेकंड शेड्यूल इज सैलरी. सैलरी अलाउंसेस ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस. वो अब वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस, फॉर एग्जाम्पल द प्रेसिडेंट, द गवर्नर, president, governor. We have speaker of Lok Sabha, chairman of Rajya Sabha. We have judges of the Supreme Court and High Court, judges of the Supreme Court and High Court, इनके salary allowances. Then we have CAG के salaries and allowances. तो ये आपका किस में आएगा? This will come in your second schedule. ठीक है. First schedule आपका India's Union Territories, its names. Second schedule आपका salaries, allowances and various, constitutional offices के president, governor, vice president, speaker, judges and the comptroller and auditor general of India. Third is, जब आपने oath दिला दी, उसके बाद क्या सैलरी दी, तो oath भी दिलानी है. Oath and affirmation. Oath and affirmation of various offices. तो ये आपने याद रखना है कि oath and affirmation. ठीक है. तो तीन आर्टिकल्स, तीन शेड्यूल्स क्लियर है? Yes, sir. ओके. थोड़ा Yes, लाउड sir. बोलो. या प्लीज. थैंक यू. नेक्स्ट इज allocation of seats to Rajya Sabha, in Rajya Sabha to the states. Fourth schedule. ये schedules आपको by heart, मतलब इनको रटना है, आपको याद करना है. Allocation of the seats in Rajya Sabha to the states. ये आपका है शेड्यूल 4. मतलब इसमें क्या होगा, जो राज्यसभा में डिफरेंट स्टेट्स को डिफरेंट सीट्स है. फॉर एग्जांपल यूपी को 31 सीट्स हैं और गोवा को सिर्फ एक ही सीट है, तो वो एलोकेशन शेड्यूल 4 में मेंशन है. ठीक है. ये है. फिर शेड्यूल 5 और 6 हैं जो आपके, वो शेड्यूल एरिया से रिलेटेड है. तो दिस इज अबाउट शेड्यूल्ड प्रोविजंस रिलेटेड टू शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज. ठीक है. ये आपका है शेड्यूल 5, शेड्यूल एरियाज. फिर आपका है शेड्यूल 6. सो इट इज अबाउट ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा. इसको याद करने के लिए बस एक कोड है AMTM, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा. दिस कोड विल हेल्प यू रिमेंबर द 6th schedule. 5th schedule, scheduled and tribal areas in states and UTs generally, and this is tribal areas in 4 states. ठीक है. असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा. स्पीड सेल्स तो नहीं है, लिख पा रहे हो आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. Able to comprehend as well?
ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा जो 7th शेड्यूल है, ये दिस टॉक्स अबाउट द 3 लिस्ट्स। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर हमने पढ़ा था ना, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। तो ये 7th शेड्यूल में आती है 3 लिस्ट आपकी, यूनियन लिस्ट, देन यू हैव स्टेट लिस्ट, एंड थर्ड वी हैव कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ये 3 तरह की लिस्ट आएंगी इसमें, जो डिफाइन करती हैं कि कौन से हमारे जो पावर्स एंड फंक्शंस है वो सेंटर को मिलेंगे, कौन से स्टेट्स को मिलेंगे, और कौन से एरियाज में दोनों को मतलब पावर मिलेगी। और इसके बाद जो पावर्स इन 3 लिस्ट में मेंशन नहीं है, उनको हम कहते हैं रेजिडुअरी पावर। रेजिडुअरी पावर, तो रेजिडुअरी पावर किसके पास रहेगी? पार्लियामेंट के पास, सेंटर के पास। पावर टू मेक laws on the residuary subjects will remain with the parliament. Okay. Next we have schedule 8. बता सकते हैं 8 schedule किससे रिलेटेड है? Languages. थोड़ा लाउड हो जाए, I can't hear you properly. Languages. Yes, it's about the languages. How many languages in the 8th schedule? 22. 22. 22 languages in the 8th schedule. Originally, so 8th schedule talks about the languages in the constitution recognized by the constitution. Originally there were 14 languages. Write it, लिख दे जाइए. Originally there were 14 languages. And उसके बाद लिखिए फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू डिफरेंट और लैंग्वेजेस ऐड की. पहली 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967. तो 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967, इसके थ्रू हमने कौन सी लैंग्वेज ऐड की? सिंधी. ये आपको पूरा बाय हार्ट होना चाहिए. ये जो अभी अमेंडमेंट्स लिखा रहा हूँ ना, इनमें क्वेश्चन डेफिनेटली आना आपको, तो इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए. तो 21st Amendment Act of 1967 added the language of Sindhi as the 15th language. फिर आ जाइए, उसके बाद आपकी आ गई 71st Amendment. ये कब हुई? 1992. इसमें कौन सी लैंग्वेज हुई ऐड? KMN. ये कोड याद रखो, KMN. ठीक है, KMN. कौन सी है इसमें? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली. ये 3 लैंग्वेजेस आप इस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई. पहली हुई 1967 में सिंधी, फिर 1992 में थ्रू द 71st अमेंडमेंट कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली. उसके बाद आपकी आई 92nd अमेंडमेंट एक्ट. कब आई है? 2003 में. इसमें 4 लैंग्वेजेस ऐड हुई: बोडो, डोगरी, संथाली एंड मैथिली. इसके लिए आपका कोड है BDSM. ये आपका कोड होगा इसका, ठीक है, याद करने के लिए. तो आपकी 4 तरह की लैंग्वेजेस है. तीन अमेंडमेंट्स के थ्रू हमने लैंग्वेजेस ऐड की हैं. पहली आपकी हो गई 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967. देन यू हैव 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992. इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ऐड होगी. देन 92nd अमेंडमेंट एक्ट बोडो, डोगरी, संथाली एंड मैथिली. ओके, तो ये याद रखना आपको कि कौन सी लैंग्वेजेस है. इसके अलावा कौन सी है? आपकी संस्कृत है, आपकी हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, बंगाली है. वो आप सारी बाकी 14 लैंग्वेजेस भी देख लें, और ये वाली 8 लैंग्वेजेस भी. तो टोटल वी हैव कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेजेस इन आवर 8th schedule. Okay, then you have schedule 9. Schedule 9 is related to land reforms. और जमींदारी एबोलिशन से रिलेटेड है ये.
ठीक है, इसकी एक थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको कि 24 अप्रैल 1973, ये आपको पता होना चाहिए कि केशव नंदा भारती केस की जजमेंट आई थी। केशव नंदा भारती केस। तो जो भी लेजिस्लेशन हम 9 शेड्यूल में डालते हैं, दैट बिकम्स इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो जो भी आप अमेंडमेंट, जो भी आप लेजिस्लेशन आप शेड्यूल 9 में डालेंगे, whatever constitutional legislative enactment you place in schedule 9, that becomes immune to judicial review. तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी, जिस भी उनको अपने लेजिस्लेशन को बचाना होता था जुडिशियल रिव्यू से, तो वो उसको 9 शेड्यूल में डाल देती थी। सो दैट बिकेम अ वेरी वेरी फाउल प्रैक्टिस। तो फिर केशवानंदा भारती केस जब आया, केशवानंदा भारती केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, जो इनैक्टमेंट 24 अप्रैल 1973 से पहले वाली थी, they will remain immune to the judicial review, but those amendments, ये नोट करें, those amendments which were enacted, those acts or amendments which were enacted after 24th April 1973, they were subject to judicial review. So ये बहुत important point है। ठीक है, जो शेड्यूल 9 है, ये ऐड किससे हुआ था? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, जिसने राइट टू प्रॉपर्टी को अबॉलिश किया था। ठीक है, दिस इंट्रोड्यूस्ड शेड्यूल 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आप आ जाइए शेड्यूल 10। दिस इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ तो कब आया था ये? 52nd अमेंडमेंट एक्ट, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। अब इसको थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ेंगे, बाकी जब हम एंटी डिफेक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? शेड्यूल 10 में एंटी डिफेक्शन लॉ, 52nd अमेंडमेंट एक्ट। तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अगर इलेक्शन के बाद, फॉर एग्जांपल एमएलए बन गया कोई बंदा, जैसे आप एमएलए बन गए, एमपी बन गए, तो आपने इलेक्शन होने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद, मेंबर बनने के बाद आपने कोई और पार्टी ज्वाइन की, फॉर एग्जांपल कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, उसने पार्टी ज्वाइन की कोई दूसरी, उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। या कोई एक पार्टी से दूसरी पार्टी गया, तब भी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। सिर्फ एक केस है जिसमें 6 महीने का टाइम मिलता है, वो है नॉमिनेटेड मेंबर के केस में। इन केस ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर, जैसे आपको पता है कि राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट। नॉमिनेटेड मेंबर के पास 6 महीने का टाइम होता है, जिसके बीच में वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल नहीं होगी। अगर 6 महीने के बाद करेगा, इफ अ नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द पीरियड ऑफ 6 months, he ceases to be the member of that house. So just remember that. ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल, 11th शेड्यूल क्या है, कब आया था? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसने क्या किया? इट प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो ऐसा नहीं था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, वो एग्जिस्ट कर रहे थे, पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया 11th शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ठीक है, इसने क्या ऐड किया? इसने ऐड किया 11th शेड्यूल, जिसमें 29 मैटर्स थे, 29 मैटर्स थे, और इसने एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एम्पावर किया। सिमिलरली we had 12th शेड्यूल। ठीक है, इसने क्या किया? अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स,
urban local governments were given constitutional status. ठीक है, इसमें अमेंडमेंट कौन सी थी? 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992. इसमें टोटल 18 मैटर्स थे, 18 मैटर्स. तो ये बस समझ लो, ये दोनों जो अमेंडमेंट्स थी 73rd and 74th अमेंडमेंट एक्ट, दे प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू वेरियस लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज एज वेल एज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. तो स्केड्यूल्स में किसी को कोई डाउट है तो पूछो. अभी हमने 12 स्केड्यूल्स पढ़ लिए अपने. कुछ स्केड्यूल्स में कुछ डाउट है तो बताइए. एनी डाउट? ब्रेकफास्ट नहीं करके आए क्या आप लोग आज? मुझे लग रहा है ऐसे. Should we take a break for you? You can have something and then come back. No worries. I'm okay with that. Involvement नहीं रखेंगे क्लास में तो it would be difficult, guys. The proud young citizens of this country should brim with confidence. No doubt, sir. I would expect the answer to be a little more prompt so that we can go ahead. Anyone else has any doubts regarding these schedules? No, sir. बड़े स्मार्ट बच्चे यार आप लोग, आपको कोई डाउट ही नहीं है. वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट हमारा है, हम देखेंगे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा फीचर कहां से लिया है. सोर्सेज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सोर्सेज. फर्स्ट आपका आ गया, हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उससे हमने क्या क्या लिया. तो लिखिए, फर्स्ट इसमें क्या था? फेडरल स्कीम. ठीक है. ऑफिस ऑफ गवर्नर. ठीक है. इमरजेंसी प्रोविजंस. ठीक है. पब्लिक सर्विस कमीशन का भी प्रोविजन हमने यहां से लिया है. पब्लिक सर्विस कमीशंस. ठीक है. These 4 provisions were majorly, and in fact, most of the constitution was adopted from the Government of India Act 1935. So it kind of provided a skeletal structure for our constitution. Skeletal structure for our constitution. ठीक है. तो ये था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. इसके बाद आपका आ गया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है. ब्रिटिश. तो ये तो आपको पता ही रहेगा. सबसे पहले तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपना वहां से लिया. पार्लियामेंट्री सिस्टम. ठीक है. दूसरा रूल ऑफ लॉ. ये आपको ना पॉइंट ये रट्टा मारना है, इसका याद करना है पूरा. इसमें कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसमें से एक ना एक आधा क्वेश्चन आ ही जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट और क्या लिया हमने? सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया हमने ब्रिटेन से लिया है. सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया लिया. फिर हमारा सिस्टम क्या है? कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. तो द कैबिनेट सिस्टम और द वेस्टमिनिस्टर सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम ब्रिटेन. दूसरा हमने बाई कैमरलिज्म है ना, बाई कैमरलिज्म. बाई कैमरलिज्म क्या होता है? लोअर हाउस एंड अपर हाउस, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड द हाउस ऑफ कॉमन्स. ब्रिटेन में वी हैव द हाउस ऑफ लॉर्ड्स which is the lower house, upper house, and the house of commons which is the lower house. साथ में the idea of writs, prerogative writs, जो writs का है हमने ये भी हमने यहीं से लिया. Then you have parliamentary privileges.
पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ये भी हमने यहां से लिए। तो इसका जो ओरिजिन अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि एक ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन रहे हैं बड़े पॉपुलर, उनका एक बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है दैट द ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग except make a man a woman and a woman a man। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एब्सोल्यूट पावर है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, तो इसीलिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी एक्सटेंड की गई थी पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस को। तो ये हमने आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कहां से लिया है? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, यहां तक क्लियर है, नोट हो गया? ठीक है, नेक्स्ट हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? आपको पहले पता है जुडिशियल सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट हमने वहां से लिया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमारी आई थी यूएस से, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। फिर आपने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन 1776, डिक्लेरेशन ऑफ द अमेरिकन इंडिपेंडेंस, तो फंडामेंटल राइट्स। ये हमारे यहीं से आए। फिर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, impeachment of the president। Okay, next, removal of Supreme Court and High Court judges, and the office of vice president भी हमने यहीं से लिया, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या क्या लिया? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस है, ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। जस्ट गेट इट इनग्रेन्ड इन योर माइंड, इसको रिवाइज करें, याद करें। दूसरा, एरिश कॉन्स्टिट्यूशन, किसी को पता है हमने एरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? बताएगा कोई? थोड़ा लाउड होना, whoever is going to say। एरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? Yes, DPSP, sorry, I can't hear you, can't be loud, I think your voice is a little, sir, DPSP, yes, be loud like that, good। DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए और आयरलैंड ने स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे पहले। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका डीपीएसपी। और नॉमिनेटेड मेंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, नॉमिनेटेड मेंबर्स, ये भी हमने आयरलैंड से लिया। ठीक है, नेक्स्ट, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया हमने? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो एक तो हमारा फेडरल स्कीम थोड़ा सा वहां से रिलेटेड है, तो फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये हमने कैनेडियन सेटअप से लिया। ओके, नेक्स्ट, एक होती है ना, हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट जो पढ़ेंगे, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये अंडर आर्टिकल 143 क्या होता है? जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट, हिज एक्सीलेंसी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सो दैट jurisdiction of the honorable supreme court is called as the advisory jurisdiction। ठीक है,
Next, you have what we had from the Australian Constitution. ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है? तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉन्करेंट लिस्ट कहां से आई? कॉन्करेंट लिस्ट दैट कम्स फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट है कि सस्पेंशन ऑफ राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये हमने लिया है वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। Just get your head across this one. This is an important one. हमने जो इमरजेंसी प्रोविजंस लिए थे वो लिए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, बट सस्पेंशन ऑफ राइट्स, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर इमरजेंसी, दैट कम्स फ्रॉम द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाइए, हमने सोवियत यूनियन से क्या लिया है? सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट फ्रेंच, ये तो आपको अगर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है तो द फ्रेंच टर्म्स ऑफ फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, तो इससे तीन जो हमारे आइडियल्स हमने अडॉप्ट किए हैं, लिबर्टे, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। सो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, these have been the gifts of the French Revolution to the world, ठीक है। These are the gifts of the French Revolution. Now, if you know about the fall of the Bastille, the fall of the Bastille, the fall of the Bastille, 1789. What happened? The French commoners, they stormed the Bastille prison and they freed the prisoners. Although there were very few only, but they freed them. And Louis XIV and his notorious queen, Maria Antoinette, they were captured, and finally the king was guillotined. The concept of guillotined, he was butchered in the central square of the French capital. So that is the ideals of liberty, equality, fraternity, liberty, equality, fraternity have been adopted in the various constitutions of the world in the democratic principles, and it is a gift of the French Revolution to the world. Next, South Africa से हमें क्या मिला है? साउथ अफ्रीका से हमें मिला प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। और लास्टली फ्रॉम द जापानीज we got the procedure established by law. ठीक है, South Africa से procedure for amendment, and from Japanese we got the procedure established by law. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Any doubts? No doubts? तो ये बताइए Schedule 7 में क्या होता है? What is Schedule 7? The concurrent list. Okay. 72nd Amendment Act से हमारी कौन सी लैंग्वेजेस ऐड हुई थी? 72nd Amendment Act of the Constitution. KMN,
Konkani, Manipuri, and Nepali. Nepali. And 90-second one, my dad. BDSM, Bodo, Dogri, Santhali, And Mathli. Maithili. Good, good. And what is sixth schedule? And, tribal areas. Assam, Which Meghalaya, yes, Tripura, Mizoram. that is important. Just remember the difference. 5 और 6 schedule में यही difference है. 5th schedule में schedule areas and tribal areas, and 6th schedule is tribal areas in AMTM, Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram. Okay, Okay, sir. wonderful, very good. Next, our topic is preamble. Preamble of the Constitution. ठीक है, तो preamble आपको पता ही है. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure for all its citizens justice, कौन सी? Social, economic, and political liberty. So justice क्या provide करता है? Justice, कौन सी justice? Social, ये लिख लो, social, economic, political, ठीक है. Liberty, किस चीज की liberty? Of thought, expression, belief, faith, and worship. ठीक है, ये टर्म्स बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए आपकी. क्या क्या जस्टिस किस टाइप की? सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. लिबर्टी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. उसमें वो कोई 6 टर्म कोई घुसा देगा, अच्छा ये भी होगी, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये 5 ही टर्म्स थी उसमें. और उसके बाद इक्वालिटी. इक्वालिटी किस चीज की? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए. Justice, socio-economic, political, liberty, thought, expression, belief, faith, and worship, and equality, status and opportunity. Next, fraternity. Fraternity क्या होती है? हमने वही पढ़ा ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें fraternity मिली है. Fraternity means dignity of individual. ठीक है, dignity of individual and unity and integrity of the union. देश की unity of integrity and dignity of individual. So that comes under fraternity. And finally, वो क्या कहता है? On this 26th day of November, 26th day of November 1949, we hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution. तो 26 नवंबर 1939 को क्या हुआ था? हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट भी किया था और इनैक्ट भी किया था. और 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ था? दैट इज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये डिफरेंस समझ लीजिए थोड़ा सा. कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो प्रियम्बल हमें 4 चीजें बताता है. ठीक है, 4 चीजें बताता है प्रियम्बल. क्या है वो? पहला बताता है कि सोर्स. सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? क्या है सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? वी द पीपल. वी द पीपल, हम लोग खुद. तभी तो हम कहते हैं ना कि वी आर पॉपुलर सोवरेनिटी इंडिया में. पॉपुलर सोवरेनिटी. That is why the source is we the people, and that is why we have popular sovereignty. Next is nature of the state. Nature क्या था? हमने देखा था ना, social, sovereign, socialist, secular, democratic republic. क्या हमारा nature? Sovereign, socialist, secular, democratic republic. ठीक है, sovereign क्या है वो पता होना चाहिए. सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये आपके टर्म्स ऐड हुए थे by the 42nd Amendment Act 1976. तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड्स नहीं थे प्रियम्बल में, ये ऐड हुए थे आपके
1942 अमेंडमेंट एक्ट 1976 को। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोशलिस्ट नहीं था या सेक्युलर नहीं था, वो था, बट 1976 में एक्सप्लिसिटली ये टर्म्स मेंशन किए गए। ठीक है, उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स कॉन्स्टिट्यूशन के क्या थे? ये फर्स्ट सोर्स है, सेकंड नेचर, थर्ड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स में हमने देख लिया, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब ऑब्जेक्टिव्स थे। और फोर्थ उसने डेट भी बता दी, डेट ऑफ द कमेंसमेंट, डेट ऑफ द अडॉप्शन क्या थी? 26 नवंबर 1939। तो दीज आर द थिंग्स अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम सॉवरेनिटी की बात करें तो सॉवरेनिटी का मतलब क्या है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको ये टर्म्स एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सॉवरेनिटी क्या होती है? A sovereign is one who holds the absolute authority. For example, एक फ्रेंच फिलोसोफर है जॉन ऑस्टिन। इज अ फ्रेंच फिलोसोफर जॉन ऑस्टिन। इनकी एक स्टेटमेंट है, वेरी पॉपुलर स्टेटमेंट, इफ a determinate human superior determinate human superior not in habit of obedience to a like superior receives obedience from the bulk of the society, from the bulk of the society, then that determinate superior, then that determinate superior is the sovereign and the society is subordinate to him. ठीक है, so इसमें आपको थोड़ा सा समझाता हूँ क्या कह रहा है। If a determinate human superior, there is a certain superior person, for example, let's suppose it is A, not in habit of obedience, not in habit of obedience to a like superior, उसके जैसे और भी जो सुपीरियर डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर्स हैं वो उनको ओब्लाइज नहीं है अवॉइड करने के लिए, ठीक है, पर ही रिसीव्स ओबीडियंस फ्रॉम द बल्क ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, एक डिटर्मिनेट सुपीरियर ए है और बहुत सारे बी सी डी हैं, बी सी डी ई कुछ भी हैं, तो ये इसको ओबीडियंस देते हैं लेकिन ये इनको नहीं देता और ये पूरी सोसाइटी से भी ओबीडियंस मिलती है। तो तब ये जो ए होगा, he is a sovereign, that person is a sovereign, he exercises authority over the society, the society is democratic and republic, democratic not republic, that society is like that। so ये concept था sovereignty का। is it clear to you guys? थोड़ा समझ आ गया sovereignty के बारे में? Yes, sir. okay, wonderful। एक और चीज लिख लो प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल जो था, प्रियम्बल it is